Thanks. Basically, we are going to talk about emission and absorption spectrum of hydrogen. Uh, the thing is, why we are only talking about absorption and emission spectrum of hydrogen itself, only hydrogen, okay, with respect to Bohr's model. Of hydrogen atom. Okay. We are talking about only absorption, I mean absorption and emission spectrum of only hydrogen atom, primarily because uh, the data which is predicted on the basis of Bohr's model and the experimental data, they match only for they match only for uh, this thing, hydrogen atom. For rest other atoms, the data does not match. ठीक है, ये point लिख लेते हैं. Um, while talking about well, and discussing Bohr's model of model emission and absorption spectrum of only hydrogen atom of only hydrogen atom is discussed as is discussed as theoretical values of emission and absorption spectrum of each atom matches with its experimental values. ठीक है? Whereas for all other atoms, the theoretical value based on
Bohr's model and experimental value does not match. ठीक है? Or what is the reason behind it? We'll discuss about the reason on the next page. Just take a note of it. Noted. सर एक मिनट. हाँ सर हो गया. हो गया? The theoretical values of absorption and emission spectrum of other atoms calculated based on Bohr's model do not match do not match with their experimental mental values
values because of the presence of multiple electrons inside atom apart from electron under consideration. However, Bohr's model can't account for influence of an of other electrons on any electron. Therefore, it fails to predict therefore it fails to predict the absorption and emission, spectrum of other atoms. ठीक है? In short, thus Bohr's model is thus Bohr's model is valid only for uni-electronic species. ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगा. लाइक हाइड्रोजन एटम के लिए रहेगा, हीलियम प्लस के लिए रहेगा, लिथियम 2+ के लिए भी वैलिड रहेगा, बेरिलियम 3+ के लिए वैलिड रहेगा. बात समझ में आ रही है? ये सारे में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो इन सब के लिए जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होगा और जो थ्योरेटिकली बोर्स मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम रहेंगे. बट द मोमेंट वी आर डेविएटिंग फ्रॉम यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. बात समझ में आ रही है? हेलो. Yes, sir. हाँ, the moment we are going to deviate from uni electronic system, the model will become. सर यूनी इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी वर्ड का मतलब क्या होता है? One. वन. ठीक है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब अनुश्रेष्ठ हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम. ठीक है,
Is it okay? And it is this reason that we discuss this Bohr's model, or we discuss the emission and absorption spectrum of hydrogen atom, and only hydrogen atom with respect to or in pretext of Bohr's model. ठीक है ना? अब अगली चीज थोड़ा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। वैसे पहले तो बताया हुआ है मैंने, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है व्हेन entire spectrum of EM waves or electromagnetic wave is incidented on a sample of atom in a sample of atoms of an element, और सिंपली ऑन अ सैंपल लिखो, वो किसी भी चीज का सैंपल हो सकता है। वी डू नॉट हैव टू बी स्पेसिफिक कि वो एटम्स एलिमेंट्स के एटम का ही होगा। इंसिडेंटेड ऑन अ सैंपल एंड देन taken on screen it is observed that many frequency lines that is line spectrum is missing
Because of many frequency lines, line spectrum is missing from incident incidented radiations, yeah, incidented electromagnetic waves, EM waves. ठीक है? These missing lines or missing frequency lines are known as absorption स्पेक्ट्रम. ठीक है? और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ये किसी भी एटम का फिंगरप्रिंट होता है. ठीक है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो या इमिशन स्पेक्ट्रम हो, दे आर द फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स. ठीक है? दीज आर काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट्स. ये भी होते हैं. और फिर एक एक्सरे आएगा, आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग, दैट एक्सरे इज ऑल्सो एन फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम. ठीक है? These absorption अच्छा, ये बाद में फिर लिखते हैं. अभी इमिशन स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर लो. इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? और देखो, इंसिडेंटेड रेज में से जो रेज एब्जॉर्ब हो गई उनको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है? और वही एब्जॉर्ब्ड रेज, जब ये पूरा इमिशन सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम जो इंसिडेंट किया जा रहा था उसको बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, और सैंपल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि जो मिसिंग लाइंस, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो मिसिंग लाइंस थी उन्हीं के करस्पॉन्डिंग लाइंस जो है वो ये वाला सैंपल जो था वो थोड़ी देर बाद इमिट कर देता है. ठीक है? यानी जो मिसिंग लाइंस एब्जॉर्ब हुई थी उस सैंपल के अंदर में, the same lines are getting emitted by that sample after some point of time. ठीक है? Once the incidented rays are switched off, after some point in time or some point of time, all the radiations which has been absorbed by the sample are being emitted back. ठीक है? That is known as emission spectrum. बात समझ में आई? हेलो, Yes, sir. ये नोट हो गया? सर एक बार रिपीट करो ना. हाँ, मैंने ये बोला कि सैंपल पर हमने पहले रेडिएशन डाला तो कुछ रेडिएशन वो सैंपल एब्जॉर्ब कर ले रहा था, बाकी को एज इट इज छोड़ दे रहा था. ठीक है? तो पहली चीज ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो सिलेक्टिव है. सारे के सारे रेडिएशंस नहीं एब्जॉर्ब करता है, कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारे को छोड़ देता है. ठीक है? जिनको एब्जॉर्ब किया हमारे सैंपल ने, जब हम इंसिडेंट रेज को बंद कर देते हैं सप्लाई करना या इंसिडेंट करना, तो थोड़ी देर बाद हमारा सैंपल जो होता है दैट स्टार्ट्स इमिटिंग रेडिएशंस, एंड दीज रेडिएशंस आर सेम एज
जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्व किया था या पहले इंसिडेंट जब किया था हमने तो उसमें से कुछ रेडिएशन मिस कर गए थे, ये जो मिसिंग रेडिएशंस होते हैं वही बाद में इमिट हो जाते हैं, यानी जो चीज हमारे सैंपल ने एब्जॉर्व किया उसी रेडिएशन को वो इमिट कर देता है। बात समझा? Yes, sir. वेरी गुड। सो एक सेकेंड। या हेलो। Yes. Yes, sir. हाँ, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? द frequency lines emitted by a sample is known as emission spectrum। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये emission and absorption spectrum are characteristic feature of atoms along with X-rays, along with characteristic X-rays they emit. Characteristic X-rays they emit। ठीक है, अगला चीज इसके अंदर में ये होता है the frequency lines that are absorbed by a sample during absorption spectrum precisely matches with its
matches with its emission spectrum. Emission spectrum this proves conservation of energy principle. और या दिस प्रूव्स वैलिडिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है, जितना एनर्जी पहले अब्जॉर्व किया वही एनर्जी रेडिएट करता है. अब पॉइंट ये है कि इन एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रम सॉरी इमिशन स्पेक्ट्रम की वैल्यूज निकालते कैसे हैं. बोर्स मॉडल में वो पहले जो हमने डेल्टा एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन निकाला ना, फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकेंड ऑर्बिटल पे जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एंड ऑल दैट, उसी के थ्रू हम लोग इन स्पेक्ट्रम के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लाइंस जो कि एब्जॉर्ब होंगे या फिर इमिट होंगे उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं. बात समझ में आ रही है? सो वी विल बी डूइंग सम एक्सरसाइज ऑन इट. आई मीन एक्सरसाइज मतलब मैं तुम लोगों को करके कुछ ये दिखाऊंगा and then we will move forward. So let us first start with some calculations. देखिए डेल्टा En जो था En1 टू En2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी. उनके लिए अगर देखें जैसे हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं, तो अगर n के टर्म्स में हम पूरी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब सारे वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख देते हैं, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस ZE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू अभी कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, 6 बजे तक करोगे ना? ठीक है, तब तक ये हाँ वाला, सर। हाँ तब तक ये वाला मैं करके फिर खत्म कर दूंगा, लेक्चर खत्म कर दूंगा 6 बजे, डोंट वरी. सो En1 से फिर एंड, मेरा डिफरेंशिएशन का लोगे? हाँ उसके बाद तुम्हारा डिफरेंशिएशन का ही लूंगा. ओके सर. ओके, मतलब बाकी लोगों को फ्री कर दूंगा. बाकी लोग में से मैं ये सोचा था अगर संदीप नहीं आएगा तो फिर ये वाला लेक्चर लेता नहीं. बट मैं उसने ये बोला था, मुझे उसके मैसेज का समझ में नहीं आया सर, क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क. एनीवे, आफ्टर दिस लेक्चर आई विल बी टेकिंग योर लेक्चर, डोंट वरी. सो एनर्जी N1 से N2 पर जब ट्रांजिशन हो रहा है, यानी फाइनल वैल्यू हमारी N2 पर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इनिशियली वो N1 पर था. तो इस ट्रांजिशन को मीट आउट करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग added to this electron so that it can increase its energy and go to higher energy level, right? वो difference of energy जो होगा that is simply given by En1 to En2, yeah, E delta En1 N2, and it is written as something like this: En2 minus En1, right? Energy of electron, total energy of electron in N2 orbital minus total energy of electron in N1 orbital, and this is further given by expressions like this. अच्छा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, ये है न्यूक्लियस, ये N1, और यहाँ से ये मूव करके जा रहा है N2 पर. वी डोंट नो व्हाट N1. हाँ नहीं, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, देते हैं. हाँ चलो. नहीं, अभी उसको यूज करो.
वो रख दो, चलो रख दो जाके। और ये पकड़ो, रख के आओ। ओके, En2 माइनस En1, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 ऑर्बिटल माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N1 ऑर्बिटल, दिस इज गिवन बाय Ze का बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों का होल स्क्वायर इनटू 1 by me, let me check, into me by 2 pi by h, into me into 2 pi by h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर n1 भी होता है, n2 होता है, यहाँ पर n2 भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है, और दैट आई एम सेपरेटिंग अवे, रुक जाइए, वन बाई n2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर सबको साथ में लिख सकते हैं 2 पाई बाय n2h का होल स्क्वायर, इधर क्या रहेगा, एक ही मिस कर रहा है, एक ही और रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, Ze बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू E इंटू me इंटू 2 पाई बाय n1h का होल स्क्वायर, ठीक है, therefore the final thing is except Z and N2 rest all thing are common, Z भी कॉमन ही रहेगा क्योंकि एक ही एटम में हो रहा है, राइट, दो अलग अलग एटम में तो ट्रांजिशन देख नहीं रहे हम लोग, so Z is also going to be common, the only differentiating things are N2 and N1, ठीक है, बाकी सारी चीजों को एक साथ ले लेते हैं हम लोग, या फॉर दैट मैटर इसको सिर्फ Z को सिर्फ बाहर रखते हैं, देयर इज अ रीजन, आई विल टेल यू, 4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू me इनटू 2 पाई बाय h 2 पाई बाय h का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा एक एंटिटी जो कि कॉमन है, और दूसरी एंटिटी जो है हमारे पास, अच्छा दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय वन मोर एंटिटी जो कि अगेन कॉमन ही है बट उसको थोड़ा सा बाहर रखा है हमने फॉर सम रीजन, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज अनदर कांस्टेंट थिंग क्योंकि एटम हमारा सेम है, राइट, एटम सेम है मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो पूरी होएगी दिस इज ऑल गोइंग टू बी सेम, तो इनको एक बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, वी विल हैव 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर, इज इट ओके, Yes, sir. ठीक है, ये होगा हमारा डेल्टा E n1 टू n2, यानी इलेक्ट्रॉन, इफ आर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम n2 और n1 ऑर्बिटल टू n2 ऑर्बिटल, व्हेन इलेक्ट्रॉन
makes a jump from n1 to n2 orbital। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये नोट कर लिया हम लोगों ने। दिस इज ME, mass of electron। हाँ सर, हो गया। अब देखिए, ये जो डेल्टा E n1 टू n2 है, एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी डिफरेंस हमने किसी रेडिएशन के थ्रू प्रोवाइड किया होगा। रेडिएशन प्रोवाइडेड, बिना रेडिएशन के हम लोग प्रोवाइड कर नहीं सकते, या फिर इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस यूज करने होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस मतलब थर्मल हीटिंग करनी होगी हम लोगों को। तो थर्मल हीटिंग बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल हीटिंग करनी होगी। जैसे वायर वगैरह लगा करके हम हीट करते हैं, तो वो वाली चीज करनी होगी। अदरवाइज द अदर मोड ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी इज ओनली वन, दैट इज रेडिएशन प्रोवाइडेड एनर्जी। ठीक है, अगर ये रेडिएशन प्रोवाइडेड एनर्जी है, तो दिस एनर्जी मस्ट करस्पॉन्ड टू सम फ्रीक्वेंसी और सम वेवलेंथ, राइट। सपोज इट करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। फाइन, तो एक्सप्रेशन हमारा कैसे होगा, डेल्टा ई n1 टू n2 इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ये किसी ना किसी रेडिएशन से होएगा, और किस रेडिएशन से होएगा, रेडिएशन प्रोवाइडेड, रेडिएशन प्रोवाइडेड एनर्जी। ठीक है, और रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, ये जब करते हैं हम hc बाई लैम्डा, तो हमको क्या मिलता है, तो वो यहाँ पे बाकी सारे टर्म जो हैं वो तो हमारे रहेंगे, ये वाला जो है। सो लेट अस पुट इट डाउन, ई क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू ME इंटू 2 पाई बाई h होल स्क्वायर इंटू, अलग से z स्क्वायर भी कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। नहीं, ठीक है, और यहाँ पर फिर फाइनली हमारे पास आ जाता है सॉरी 1/n2² माइनस 1/n1²। ठीक है, और सी, अब अगर मैं सिर्फ लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन लिखूं, 1/λ के लिए, 1/λ क्या होता है, कुछ और भी नंबर होता है। इफ यू गाइज रिमेम्बर, इट इज कॉल्ड वेव नंबर, रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस, वेव नंबर, याद है। 1/λ इज इक्वल टू, hc को इधर लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, so this entire term divided by hc will become what, I mean this will become a term e raised to the power 3 divided by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू ME इंटू 2 पाई बाई h होल स्क्वायर इंटू 1/hc। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर इंटू 1/n2² माइनस 1/n1²। ठीक है,
अब देखिए ये वाली चीज जो होती है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो हमने डाल रखा है हर बार, यहाँ पर जो स्पेशली बना, ठीक है, 1/hc से डिवाइड करके, दिस इज टर्म्ड एज रेडबर्ग कांस्टेंट. दिस इज गुड. दिस इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? रेडबर्ग रेड बुल्स कांस्टेंट. कांस्टेंट. ठीक है. एंड दिस इज इंडीड कांस्टेंट. सारे टर्म कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा. जेड की वैल्यू, अच्छा, इस रेडबर्ग कांस्टेंट यानी इसको एक्चुअली रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन बोलते हैं. सर और आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. एच एटम. हाँ सर. मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी? यस सर, सुनाई नहीं दिया था. क्या नहीं सुनाई दिया ये बताओ मुझे. मतलब कहाँ तक सुने थे, कहाँ से नहीं सुनाई दे रहा था? इसके सर पह रेडबर्ग्स कांस्टेंट, अरे बस रेडबर्ग उतना ही था. कांस्टेंट नहीं. ये ऊपर वाला सेंटेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? व्हाट अबाउट दिस? ये समझ में आया? सर एक बार वापस बताओ नहीं. कौन सा? ये वाला? यस सर. ओके. पिछला वाला, ये वाला समझ में आया? यस सर. नहीं समझ में आया तो बोलो समझ में आया. नहीं आया तो बता दो कि नहीं समझ में आया. शर्माने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट आस्किंग दिस सर कि बेसिकली मैंने ये पूछा ना आपसे कि कहाँ तक समझ में आया. इफ यू आर नॉट एबल टू, मतलब तुमको भी कैसे पता होगा कि कहाँ तक समझ में आया नहीं आया, इसलिए मैं स्टेप वाइज पूछ रहा हूँ कि कहाँ से बताऊं तुमको फिर से. सर सेकंड स्टेप. सेकेंड स्टेप से. ओके फाइन. सी सर इसके नीचे वाला ये ये वाला स्टेप. ई क्यूब. नहीं समझा. एक सेकेंड, मैं मार्क करके पूछ रहा हूँ. फ्रॉम दिस स्टेप. सर वो लैम्बडा जहाँ पे इक्वेट किया वहां से. अच्छा, नेक्स्ट पेज से पूछ रहे हो अनुश्रेष्ठ? नो सर, इसी यही इसी स्टेप सर. जो मार्क किया अभी सिंगल. अरे यार, एक सेकेंड रुक जाओ, मेरा क्रैश कर गया ओपन बोर्ड. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स. हुआ है इसने का. 1/n1² माइनस 1/n2². ठीक है, माइनस साइन को अकोमोडेट किया हमने, तो 1/n1² माइनस 1/n2². फाइन. ओके. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ, अकाउंट नंबर तो आया हुआ है, मुझे एसएमएस भी आया. हम्म. तो अभी देना है. नहीं नहीं, तो दे दो तो फिर या तो घर पे आ सकते हो या फिर ऑफिस आना है तो मंडे. ओके. सो यहाँ पर बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो रेडिएशन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला जो रेडिएशन है उसी के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है. तो चूंकि उसके थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, तो कौन से लैम्डा के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ, ये निकालने के लिए हम ये एक्सप्रेशन सेट कर रहे हैं hc/लैम्डा. ठीक है. यही वो रेडिएशन है जो कि एब्जॉर्ब हुआ है, सो दैट हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर पाए N2 से
N1 से N2 पे, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, एंड we have this expression, the final expression in form of n1 square minus 1 by n2 square, ठीक है। यहाँ पर hc जो है that can be brought down, क्रॉस करके राइट साइड में अगर लेकर के आते हैं तो इट विल बिकम 1 बाई hc, और हाफ का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर एज इट इज टोटल एनर्जी वाला रहेगा, एंड this entire thing is including this half is Rydberg constant for H atom. मतलब बेसिकली जब Z की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, it becomes Rydberg constant for H atom. इसको डिनोट करते हैं हम RH से। क्या डिनोट करते हैं? RH से, ठीक है। और अगर इसको विथ Z हम लोग रीड करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनी एटम हैविंग एटॉमिक नंबर Z, या आयन हैविंग एटॉमिक नंबर Z, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इक्वल टू Z, ठीक है। तो जनरल रेडबर्ग कांस्टेंट और हाइड्रोजन के रेडबर्ग कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप हो जाएगी? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, R is equal to RH into Z square. Am I making sense? Is it okay? ये एक्सप्रेशन समझ में आ Yes, रहे sir. हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. अब सिंपल टर्म्स में अगर मतलब ये वाली चीजों की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो RH की वैल्यू जो आती है ना, that happens to be something equal to this. RH is equal to 109 अरे बाप। Okay. Rydberg constant. It is 1097371 per meter. So this is 2 2 4 2 6 1 7 1.097 into 10 to the power 7 per meter, ठीक है। RH की वैल्यू हो जाए होती है पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इनटू प्लेस। ये सब की वैल्यूज को अगर रखते हैं हम
वी गेट RH की वैल्यू एज दिस। और तो ये लैम्डा जो है 1/λ, दिस कैन सिंपली टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1/λ, या फिर वेव नंबर, this will be equal to RH into 1/n1 square minus 1/n2 square। बात समझ में आया? एंड अब बेसिकली जो भी हम रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे अपने किसी भी एटॉमिक या सैंपल के ऊपर, एटॉमिक सैंपल्स के ऊपर जो कि हाइड्रोजन के तरह का है, तो इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब विच ऑल रेडिएशंस, it is going to absorb only those radiations which सर are n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर होगा ना? नहीं, n2 स्क्वायर माइनस n1 नहीं, माइनस साइन पहले था ना, उसकी वजह से टोटल एनर्जी में माइनस साइन है ना। हाँ सर। ठीक है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पर फाइनल में साइन चेंज कर जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब लेट अस कैलकुलेट हाइड्रोजन एटम में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरेस्ट, एंड फिर इमिशन स्पेक्ट्रम का भी देखेंगे हम लोग। सपोज n1 की वैल्यू है 1, ठीक है, n2 की डिफरेंट वैल्यूज दैट इज 2, 3 और 4 के लिए करस्पॉन्डिंग लैम्डा जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दैट इज लैम्डा 1 to 2 क्या है, लैम्डा 1 to 3 क्या है, लैम्डा 1 to 4 क्या है। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आप लोग वैल्यूज निकालेंगे इसके लिए या मैं निकालूं? 1/λ 1 2 will simply be equal to RH की वैल्यू हमको पता है 1.097 into 10 to the power 7, ठीक है, into n1 is 1, so I'll write 1 minus 1/4 or 3/4, so 1.097 into 10 to the power 7 into 3/4, right? 1/λ ये है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4/3 into 1.097 into 10 to the power -7, राइट? ये ऊपर में है 10 to the power -7 मीटर। ठीक है, so the value will simply become 1.097 into 4 divided by 3, that is 1.462 into 10 to the power -7 मीटर। ठीक है, -7 के बदले नैनोमीटर्स वगैरह में लेकर के जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 146.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 10 to the power -9, इसको 10 to the power -9 करेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 to 2 ट्रांजिशन के लिए हमको कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब होएगा, 146 नैनोमीटर, या फिर इसको 1462 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। 1 से 3 ट्रांजिशन के लिए कौन सा एब्जॉर्ब होएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.097 into 10 to the power 7 multiplied by 1 minus 1/9, ठीक है,
that makes it to be 1.097 into 8 by 9 into 10 to the power 7. Hello. 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 Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So lambda 1 to 3 transition के लिए it is 1.097 into 10 to the Sir, power आपकी 7. screen. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? Yes, sir. अब दिखा. ओके. लैम्डा 1 to 3 सर लेक्चर का भी तो है। बस अभी खत्म कर रहा हूँ. It's going to be this 1 Okay, minus sir. 1 by 9, 1.097 into 8 by 9 into 10 to the power 7. ठीक है. 1 by lambda 3. अब इसका इनवर्स ले लिया तो ये चीज भी उल्टा हो जाएगी. ये 10 to the power 7 का 10 to the power minus 7 हो गया. एंड इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 9 into 1.097 divided by 8, that is 1.23 into 10 to the power minus 7 meter, which is equal to 123 1.234 होता है 123.4 नैनोमीटर या फिर 1234 1234 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. यहाँ पर ये था वैल्यू, इससे कम वैल्यू हो गया. यानी बेसिकली होता ही है, एनर्जी बढ़ेगी हमारी. एनर्जी क्या, एनर्जी जितना बढ़ेगा हमारा वेवलेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा. राइट. तो 1 से 2 पर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, 1 से 3 पर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और 1 से 4 पर जाने के लिए एनर्जी और ज्यादा चाहिए. राइट ना. दैट इज बीइंग असर्टेन्ड बाय दिस आल्सो. ये लैम्डा 1 to 4 की वैल्यू जो होगी ना, ये आप लोग कैलकुलेट करके नेक्स्ट लेक्चर में आना. ठीक है. Okay, sir. ओके. सो लेट अस कंक्लूड दिस लेक्चर एट दिस प्लेस इटसेल्फ. और मैं फिर 10 मिनट में अनुश्रेष्ठ आता हूँ, फिर से आपका लेक्चर चालू करूंगा. ठीक है. शार्प Sir, 10 अभी मिनट. exit कर लो ना. हाँ, अभी एग्जिट कर लो. 10 मिनट में चालू करेंगे. Okay, sir. बाय.